Hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my YouTube channel Manu Ishu ACCA classes. So, in this video, we are going to complete the remaining question of the variance, and it's from the Kaplan kit of F2. So, if you're watching my video for the first time, do subscribe my channel and hit the bell icon for more updates, and don't forget to share it among your friends so that they could also have the benefit. Okay, and now you can follow me in the Instagram as well and Facebook, where you can clear your doubt whatever you are having. Okay. So now let's move to the question. The question is 368. This is the question where I stopped the previous video. Okay, so question is 368. What the question requirement is, what was the fixed overhead volume variance? Let's first make a chart. In each and every question I had made a chart and make it clear to you what the things we have to extract from the information given and what we need to calculate. So I must say you guys to practice in this way so that you could easily do the calculation and save your time in the examination, rather than mugging up the formula and thinking what the formula was for the fixed overhead volume variance, expenditure variance. So better to go through the chart. Okay, so first of all, for the fixed overhead variance, we have to make 4 column, right? So let's, in the first column, it was question number 368, right? Okay, so first we will write down SR into SH. Okay, give a one gap, two gap, ये एक कॉलम, चार हो चाहिए, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे. Okay, and in last put the AR into AH. Again here in the second column, this one is third for me. So SR लो पहले वाले का and AH लो लास्ट वाले का, एंड यहाँ पे अगेन SR लेंगे बट यहाँ पे BH लेंगे, बजटेड आवर्स. ओके, और मैंने काफ़ी बार बोला है एस एच इज़ द मेड फ्रॉम द 2 पार्ट प्रीवियस वीडियो, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यू मस्ट, आई थिंक नाउ यू हैव बीन अवेयर अबाउट दिस थिंग्स एंड हाउ द क्वेश्चन यूज टू आस्क, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोग को कैसे यूज़ करना है, राइट? सो अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी. आई होप कि आप लोग उससे फैमिलियर हो गए हो. अगर नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगी या फिर से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, जैसे मैंने मटेरियल वेरिएंस का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने सारे फार्मूला विच इज़ यूजफुल फॉर द F2 एज वेल एज F5 स्टूडेंट, मैंने वो वीडियो बना के, मैं उसका वीडियो का आपको लिंक या फिर डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में या फिर ऊपर लिंक एक ब्लिंक हो जाएगा आपको. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम वेरिएंस. सो लेट्स इसको नाम देती हूँ A, B, C and D. Okay, so difference between A minus B is our efficiency variance, right? And B minus C is capacity variance. और A minus C directly you can calculate the volume variance, और volume variance ये भी होता है आपका efficiency plus capacity variance, को भी हम लोग कहते हैं volume variance. Okay, and C minus D will be your expenditure variance. Okay, अगर टोटल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, इन दैट केस A minus D, और यू कैन ऐड द इफिशिएंसी कैपेसिटी और एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर. ठीक है, आप या इफिशिएंसी कैपेसिटी और एक्सपेंडिचर को ऐड करो, यू कैन गेट द टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, और यू कैन सिंपली ऐड द वॉल्यूम वेरिएंस प्लस एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ओके, डिपेंड ऑन यू. तो लेट्स read the question. QR has a budgeted to produce 400 unit in January. So budgeted production, budgeted quantity we can say, what is that? 4000 units. Okay, actual production was 3700 unit. So actual quantity produced 3700 unit.
with a fixed production overhead of 10,300. So we do have given directly the AR into AH value, which is 10,300. Okay, the standard fixed overhead cost per unit was 1.5. One more thing I forgot to say, A minus D, if it is positive, it's a overhead over absorption, and if it is negative, that is the under absorption. Okay. Okay, standard fixed overhead cost per unit was 1.5 hours at 2.40 per hour. So basically your SR is given 2.40. ये क्या चीज़ में होता है, डॉलर पर आवर में होता है. एंड स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, वो कितना दिया हुआ है, 1.5. तो ये क्या है आपका, आवर पर यूनिट. ठीक है. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, कभी कभी क्वेश्चन में यही दिया होगा और समटाइम यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, तो ये ना क्या हो जाएगा, डॉलर पर यूनिट. ओके. ओके, सो नाउ 5800 actual production hours are worked. So AH is given, which is 5800 hours. Okay. So क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, दे आर आस्किंग फॉर द वॉल्यूम वेरिएंस. और आप इफिशिएंसी कैलकुलेट करो, कैपेसिटी कैलकुलेट करो, उसको जोड़ दो, या फिर यू कैन डायरेक्टली डू A माइनस सी. ठीक है, बट A माइनस सी के लिए हम लोग को बजटेड आवर्स, ओके वी कैन फाइंड आउट, डोंट वरी. सो अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई एस आर 2.4 इंटू 1.5 इंटू द एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस. बात एक ही है. ओके, सो वी गॉट आवर वैल्यू. एंड थर्ड वन, एस आर इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट लेंगे ही यहाँ पे, क्योंकि बजटेड आवर्स वी डोंट नो. सो ये एंड बजटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी टू प्रोड्यूस was इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर वॉल्यूम वेरिएंस विल बी डिफरेंस ऑफ दिस टू. सो 1080 adverse. I hope this is clear to you all guys. सिंपल है वेरिएंस, कुछ हार्ड नहीं है, बस जैसे जैसे मैं चार्ट बना रही हूँ, आई मस्ट से यू गाइज टू फॉलो द सेम रूल्स. इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू गाइज. आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम सेविंग भी है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मुझे ढूंढना है क्वेश्चन में. ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा प्लीज़ बैक करके एक बार फिर से रिप्ले करो, यू विल गेट टू नो. ओके, आगे बढ़ते हैं. और ये नेगेटिव तो क्या है, ये एडवर्स है. 369 क्वेश्चन नंबर. ओके, which of the following could be causes of an adverse sales volume variance for the garden furniture? So what is the formula for the sales volume variance? Okay, so यहाँ पे हो जाएगा आपका AQ माइनस BQ, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन. अब स्टैंडर्ड मार्जिन, अब ये अगर यू आर using the absorption costing system, in that case it will be standard profit per unit, and if you are using the marginal costing system, in that case it will be the standard contribution per unit. Okay, it's depend. यहाँ पे वैसा कुछ क्लासीफाई नहीं किया है, सिंपली दे आर आस्किंग व्हाट कॉजेज द एडवर्स सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. अब ये एडवर्स कब आएगा, जब एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज लेस देन द बजटेड वन. इन दैट केस a company offer discount on the sale price in order to maintain the business. एक सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल. Okay, so
फर्स्ट ऑप्शन इज ए कंपनी ऑफर डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस इन ऑर्डर टू मेंटेन द बिजनेस. अगर आप सॉरी अगर यू आर रिड्यूसिंग द सेल प्राइस, इन दैट केस व्हाट हैपन, योर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड विल बी मोर, क्योंकि कम प्राइस में ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे. ऑब्वियस, इट इज़ अ फैक्ट. सो यहाँ पे आपका क्या होगा, फेवरेबल होगा, नॉट द एडवर्स. ओके ओके. और ये आपको किसको इफेक्ट करेगा, सेल्स प्राइस वेरिएंस को, नॉट द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. राइट, वेरिएंस का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, उल्टा पुल्टा हो गया. ओके. So next क्या है, poor weather lead to reduction in the sales. Obviously this could be the one of the reason behind the sales volume variance, क्योंकि अभी से actual quantity sold क्या होगा, less होगा. So adverse तो आना ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्ट्राइक इन द फैक्ट्री कॉजेज अ शॉर्टेज ऑफ फिनिश गुड. ये भी हो सकता है ऑब्वियसली कि फैक्ट्री में शॉर्टेज मतलब फिनिश गुड का शॉर्टेज, जिसके वजह से आप कस्टमर को फुलफिल नहीं कर पाओगे डिमांड. सो विच कुड लीड टू द एडवर्स सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. Okay, next question, what is the material uses variance? So let's make a chart for the materials. और मैंने एक particular video बनाया हुआ है इस material का variance से related. So I must say you guys to watch that video at least once. ठीक है. So material के लिए पहले क्या करना होगा, we will write down SP into SQ. फिर हम लोग एक लास्ट में कॉलम में जाके लिखेंगे AP into AQ. ओके. और बीच वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, SP पहले वाले का और AQ लास्ट वाले का. और ये केस क्या है, परचेज इक्वल टू यूज. ठीक है. ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन परचेज देयर इज सम, मतलब उसको पूरा यूज नहीं हुआ है, कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री में है. क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा. अगर नहीं कुछ बोला है, सिंपली यू हैव टू एज्यूम परचेज इक्वल टू यूज, मीन्स वॉट एवर मटेरियल यू हैव इन परचेज ऑल ऑफ देम हैव बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन. ओके. सो अब हम लोग को निकालना क्या है, मटेरियल यूज. मटेरियल यूज क्या क्या डिफरेंस इज बिटवीन दिस टू, राइट. इन दोनों का डिफरेंस इज द मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एंड लास्ट टू डिफरेंस इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, है ना. सो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इनपुट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड इनपुट. ओके. सो एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, उसका कोई यूजेस नहीं है. सो इनपुट ऑफ मटेरियल AQ इज गिवन. ओके. ओके. सो एक एक करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग को डिफरेंस क्या चाहिए. लेट्स अज्यूम दिस इज A, दिस वन इज B एंड ये आपका है C. सो योर A माइनस B इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, राइट. सो हम लोग क्या क्या चाहिए, SP चाहिए, SQ चाहिए, और AP और AP का कोई नीड ही नहीं है, एंड AQ. ओके. और AQ अगर SQ नहीं दिया है, इन दैट केस SQ के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, SQ इज मेड फ्रॉम द टू कंपोनेंट. क्या क्या है, स्टैंडर्ड आवर kg, स्टैंडर्ड kg रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, और दूसरा क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. अगर ये दिया है तो उसके थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर नहीं तो डायरेक्टली SQ दिया होगा वो वैल्यू ले लेंगे. ओके. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो. ओके. सो लेट्स फाइंड आउट. अब हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका तो कोई हालांकि यूज ही नहीं है, ये तो दिया हुआ है. एंड एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इज ऑल्सो गिवन 580 यूनिट्स. ठीक है. ओके. एंड स्टैंडर्ड kg रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, because we know the what is the budgeted quantity and the input of the material used. It's a 1500 divided by 600. तो ये हमारा 2.5 kg लग रहा है टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट. ओके. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द SQ. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो SQ है. 450 ये क्या है हमारा, kg नहीं. ओके. SP, हाँ SP के लिए ये भी निकल जाएगा. सो वी नो द बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल 76500 एंड वी ऑल्सो नो द इनपुट ऑफ द मटेरियल 1500. तो ये आ जाएगा हमारा डॉलर पर kg में. ओके. ये kg होगा. ओके. सो AQ is also given
1566 kg. Now we can easily calculate the things because सारी information we got from the question. अब SP पता चल गया, what is that? 51. SQB we have calculated 1450, SP 15, and AQ we also know इतना. So material uses variance क्या है, इन दोनों का difference. So it's a negative. Negative it means adverse. ठीक है? I hope it is clear to you guys. मैं बहुत सिंपल में समझा रही हूँ आप लोगों को. Okay, 371. What were the material purchased in the period? Okay. So यहाँ पे same formula. I think ये case है आपका purchase is not equal to uses का case. I think लग तो वैसे रहा है. Let's read out the question, then we will get to more clear what question is asking. For the product DR, the material price variance for the month of August was 1000 favorable. So material price variance they have given. पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है. SP into SQ और क्या था हमारा AP into AQ. फिर यहाँ पे क्या लेंगे, SP लेंगे पहले वाले का एंड AQ लेंगे लास्ट वाले का. इतना पता चल गया. और देखते हैं ये परचेज इज नॉट इक्वल टू का केस है तो हम लोग एक और ऐड करेंगे. ओके, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू. B माइनस C इक्वल टू क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ठीक है. ओके, सो आई थिंक वॉइस स्टॉप हो गई थी बीच में क्या. ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका हुआ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट्स 1000 फेवरेबल, राइट. मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज आल्सो गिवन, दैट इज A माइनस B. ये क्या है हमारा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस. amount is 3000. Adverse means negative. Okay, so standard material uses per unit is 3 kg. It means ये क्या है आपका, standard kg required to produce 1 unit. ये कितना है, 3 kg per unit. Standard material price is 2 per kg. means ये आपका SP दिया हुआ है. इट्स 2 एंड ये क्या है आपका डॉलर पर केजी. ठीक है. 500 यूनिट वेर प्रोड्यूस इन द पीरियड मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना है, 500 यूनिट्स. ओके ओके. अब ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वेर 100 kg एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओके. So opening inventory it's 100 kg. Closing inventory is 400 kg. Obviously यहाँ पे purchase is not equal to का केस है. ठीक है. SP इंटू AQ होगा, बट यहाँ पे AQ होगा जो हम लोग ने यूज किया, यहाँ पे AQ जो होगा हम लोग ने परचेज किया. ओके, तो परचेज कितना किया क्वेश्चन वो पूछ रहा है. ठीक है. सो परचेज के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना शायद. ओके, सो बेसिकली प्रोड्यूस कितना हुआ है, प्रोड्यूस इतना हुआ है. यहाँ पे गैप दे देती हूँ. सो एक्चुअल में जितना प्रोडक्शन किए हैं उसके लिए क्वांटिटी कितना यूज हुआ वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं.
2 इंटू 500 1000 kg यूज हुआ होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, शायद यही होता है, एक बार ट्राई करती हूँ। प्रोडक्शन का क्वांटिटी इज आवर 1000 kg, ओपनिंग कितना है 100, परचेज निकालना है, क्लोजिंग इज 400। सो परचेज इक्वल टू 1000 प्लस 400 माइनस 100, नहीं ये नहीं होगा, परचेज इक्वल टू, सर मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, आई थिंक ये परचेज होगा, परचेज एंड दिस वन विल बी प्रोडक्शन, आई थिंक प्रोडक्शन। सिली मिस्टेक मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट्स एसपी सेलिंग प्राइस, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड केजी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 3 एंड ये हो जाएगा 500। अब ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला मेरा सही था, ये होगा प्रोडक्शन एंड परचेज होगा, ये सही था, परचेज। ओके, सो प्रोडक्शन परचेज, प्रोडक्शन इज 1500, ओपनिंग प्लस परचेज, ठीक है, इतना ही होगा ना 1500, जस्ट वेट। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं हटा के फिर से वापस से करती हूँ। ओके, इसको तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से मिस्टेक है। ओके, और एक क्यू यहाँ पे ऐसे नहीं निकलेगा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ ए परचेज नॉट इक्वल टू यूजेस, इसी का केस है ना ये, क्वेश्चन नंबर 371। ओके, सो हम लोग को यूजेस वेरिएंस दिया हुआ है, हम लोग को पूछ रहा है परचेज कितना किया है, इट मीन्स ये वाला ए क्यू द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्चुअल प्राइस इट्स नॉट गिवन, वी डू हैव ए इन दोनों का डिफरेंस। ओके, पहले वैल्यू निकालते हैं, एस पी वी नो इज 2 पर के जी इंटू 3 इंटू 500 एंड हम लोग को मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी पता है, सो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, वो हो जाएगी हमारी मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज नेगेटिव, सो माइनस 300 3300 इट विल बी, तब तो दोनों का डिफरेंस 300 आएगा नेगेटिव में, सो दैट कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस विल बी 300 एडवर्स, राइट। उसके बाद ये आने के बाद यहाँ पे यूजेस निकल जाएगा, ये ए क्यू यूजेस वाला, ए क्यू यूजेस 1 कितना यूज किया 33 डिवाइड बाई एस पी कितना है 2, सो 1650 kg हम लोग ने यूज किया प्रोडक्शन करने में। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सो आई थिंक वी विल गेट आवर आंसर। सो प्रोडक्शन इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। सो प्रोडक्शन इज 1650 इक्वल टू ओपनिंग अमाउंट इज 100 प्लस परचेज वी नीड टू फाइंड इट आउट एंड 400, ठीक है। सो 1650 प्लस 400 माइनस 100 करने पे 1950 आ गया परचेज। ओके, सो दिस वन इज केसेस ऑफ परचेज नॉट इक्वल टू यूजेस, उसी की वजह से मेरा मिस्टेक हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो हम लोग एस पी इंटू एस क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड वी नो द मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस यूज करके वी विल फाइंड आउट एस पी इंटू एस क्यू वैल्यू। अब वहाँ पे एस पी की वैल्यू हम लोग को पता है, सो ए क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ए क्यू की वैल्यू क्या है जो हम लोग ने प्रोडक्शन में यूज़ किया, ठीक है, तो वो ए क्यू की वैल्यू निकल गई है 1650, इसलिए मैंने यहाँ पे यू का साइन दिया हुआ है। ओके, सो इसको यूज़ करके ये फॉर्मूला में डाला, तो वी गॉट द 1950 एज अ परचेज अमाउंट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज
what is the price variance for material P? So question is asking the price variance. यही फॉर्मूला होगा. Question number is your 372. ये तो सेम ऊपर वाला जैसे ही लग रहा है. सो एस पी इंटू एस क्यू, ए पी इंटू ए क्यू, फिर यहाँ पे एस पी इंटू ए क्यू. प्राइस वेरियंस इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट, है ना. सो एक्चुअल कॉस्ट इज गिवन विच इज 25,839. ओके, एंड अगेन हम लोग को कैलकुलेट करना होगा वैल्यू वगैरह. सो एस पी हमारा कितना है, कॉस्ट बजटेड वाला 25,500. इसको डिवाइड करेंगे जितना इनपुट मटेरियल यूज हुआ है. सो वी विल गेट एस पी. अब ये क्या चीज़ में, डॉलर पर केजी में. ए क्यू के लिए हम लोग निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड. इट्स गिवन, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 1566 हो तो गया. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज आवर मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ये दोनों का डिफरेंस. एंड आंसर इज इन द पॉजिटिव. इट मीन्स ये क्या है हमारा, फेवरेबल. ओके, इजी था ना. ओके, 374. What was the favorable sales volume variance using the marginal costing system? 374. So sales volume का फॉर्मूला क्या है, for the marginal sales volume variance इक्वल टू आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू. अब ये मार्जिनल है तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा. एंड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ए क्यू क्या है आपका 3500 एंड बी क्यू भी दिया हुआ है 3000. एंड स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका है, वी नो द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस में से सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, वी विल गेट द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस होगा एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1. सो नाउ आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा एक्चुअल माइनस बजटेड इनटू द कंट्रीब्यूशन. 9500 और पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये फेवरेबल है. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस. अब प्रॉफिट पूछ रहा है, इट मीन्स ये क्या हुआ आपका, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है. एंड फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की जगह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका. ये इसको प्रॉफिट बना देते हैं, प्रॉफिट. सो ए क्यू वी नो कितना है 9800, बी क्यू भी पता है, बी क्यू इज 10,000 और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट मतलब बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट विच इज 5. सो आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा. इट्स क्वाइट इजी आई थिंक. सो 1000 एंड नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्स. ठीक है. सो एडवर्स फेवरेबल में कंफ्यूजन नहीं हो गया अगर मेरा फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आप लोग. व्हाट वाज द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. सो क्वेश्चन नंबर इज 376. पहले फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का चार्ट बना लेते हैं. पहले क्या होगा, एस आर इंटू एस एच एंड लास्ट वाले में ए आर इंटू ए एच. ठीक है. फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एस आर इंटू ए एच और फिर एस आर इंटू बी एच. ये याद रहे, ये पहले वाला का एस आर एंड लास्ट वाले का ए एच लिखेंगे यहाँ पे और सेम रहेगा. उसके बाद खाली बी एच ऐड करना है. सो फर्स्ट टू डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी इफिशिएंसी वेरिएंस, बी माइनस सी
capacity variance, and C minus D expenditure variance. The question is asking the capacity variance means B minus C. Question is asking which is known as a capacity variance. Okay. Okay, so let's find the information to get our capacity variance. So SR दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर फॉर द, ओके SH दिया हुआ है आपको, बजटेड आवर इज गिवन एंड एक्चुअल आवर वर्कड इज गिवन, एंड ऊपर में दिया हुआ है कंपनी ऑपरेट स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज 15 पर आवर. सो SR इज गिवन, SR इज गिवन विच इज 15, ये क्या है डॉलर पर आवर. ठीक है. उसके बाद वी नीड AH कितना दिया हुआ है, एक्चुअल आवर वर्कड 5500, ये क्या है आपका आवर्स. देन BH भी दिया हुआ है, बजटेड आवर्स 5000. ठीक है. सो लेट्स गेट आवर कैलकुलेशन क्विकली, आंसर फटाफट निकाल लिया जाए. ओके, सो SR इंटू AH. एक चीज़ ध्यान क्या देना है आपको, मैं ये साइड में यूनिट क्यों लिख रही हूँ, है कि नहीं, उसका भी कुछ रीज़न लॉजिक होगा ना. देखो मैं बताती हूँ आपको, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद बता रहे हैं. एक मिनट. सो 7500 एंड जो कि ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका फेवरेबल. ठीक है. सो दिसी मैं यूनिट में ये सब क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि डॉलर पर आवर है ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन जो AH करेंगे दैट शुड ऑल्सो बी इन द आवर. ठीक है. उस टाइम आप देखे होगे यहाँ पे हम लोग ने, अब ऊपर में एक बार दिखाती हूँ आपको, जस्ट वेट. अब यहाँ पे देखो, हम लोग को अगर SQ चाहिए है, SQ क्या चीज़ में होना चाहिए, KG में होना चाहिए. KG के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड KG रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इनटू यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है. तो ये यहाँ से क्या होगा, यूनिट कट जाएगा और KG में आंसर आएगा, है कि नहीं. अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट दिया है, इसका मतलब वो डॉलर पर यूनिट है, इसका मतलब आपको सिर्फ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है. इसीलिए मैं ये सब चीज़ लिखवा रही हूँ. ठीक है, सो दैट आपको इससे भी आइडिया हो कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है. होप यहाँ तक क्लियर है सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 377. टू द नियरेस्ट 1000 आवर्स व्हाट वर द स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट मंथ. स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मीन्स SH. क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द SH. क्वेश्चन नंबर इज योर 377. सो SR इंटू SH, लास्ट में क्या लिखेंगे AR इंटू AH. उसके बाद पहले वाले का SR, लास्ट वाले का AH लेंगे. अगर वर्कड इज नॉट इक्वल टू पेड है तो उस केस में फिर एक और ऐड होगा सिमिलर टू दिस, बट वो जो AH होगा वो इंक्लूडिंग द आइडल टाइम वाला आवर होगा, और ये वाला जो AH होगा ओनली जो काम किया है वो वाला, मीन्स आइडल टाइम वाला नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ जो काम किया है वो वाला आवर होगा. तो ये देखते हैं केसेस क्या है. एक्चुअल आवर वर्क, सो AH इज गिवन एंड रेट वेरिएंस भी दिया हुआ है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस भी दिया हुआ है. सो A यहाँ पे B, मैं एज्यूम करती हूँ क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो वर्कड इक्वल टू पेड, आवर वर्कड इक्वल टू पेड. सो A माइनस B हमारा क्या होता है, A माइनस B इज आवर इफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है. एंड इफिशिएंसी वेरिएंस का अमाउंट भी दिया हुआ है विच इज 3900 एंड पॉजिटिव है तो इट मीन्स फेवरेबल. ओके. एंड आफ्टर दैट टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इट मीन्स AH दिया हुआ है हम लोग को 117,600, जो कि हम लोग को रेट पता है, रेट वेरिएंस पता है. रेट वेरिएंस कितना दिया हुआ है, नेगेटिव में 8400. कि नेगेटिव क्यों, क्योंकि एडवर्स है. तो रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका B माइनस सी. रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है B माइनस सी, और B क्या है हमारा SR इंटू AH, सॉरी SR इंटू AH माइनस AR इंटू AH. ठीक है, इक्वल टू 8400.
और ए आर इंटू ए एच पता है ना हम लोगों को, तो उसका वैल्यू रख देते हैं 117,600, ये रेट वेरिएंस. सो वी विल गेट एस आर इंटू ए एच यहाँ से, एंड जो वो कितना आएगा, वो होगा दिस प्लस 117,600. अब एक्चुअल आवर वर्क भी दिया हुआ है, तो एस आर इंटू ए एच कितना है 28,000. सो यहाँ पे इक्वल टू दिस अमाउंट. सो एस आर का अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3.9. ये है डॉलर पर आवर. व्हाट इज दिस, डॉलर पर आवर. ठीक है. सो हम लोग को इफिशिएंसी वेरिएंस पता है, एंड इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे आता है, ए माइनस बी. ए क्या है हमारा, एस आर इंटू एस एच माइनस एस आर इंटू ए एच. ठीक है, ये हमारा इफिशिएंसी वेरिएंस है, एंड जो कि इक्वल टू है 3900. ठीक है. ओके. सो एस आर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एस आर हम लोग को पता चल गया है क्या वैल्यू है. एस एच माइनस ए एच, ये इफिशिएंसी वेरिएंस, ये 3900. अब एस आर की वैल्यू वी जस्ट नाउ वी हैड कैलकुलेटेड, कितना आया 3.9. तो ये 3.9 यहाँ पे डाल दूँ, 3.9 इंटू एस एच जो कि फाइंड करना है. ए एच इज गिवन, एक्चुअल आवर वर्क इज 28,000. ठीक है. सो इक्वल टू ये कर देते हैं. सो नाउ एस एच माइनस 28,000 इक्वल टू 3.9,000. सो आपका एस एच कितना आएगा, एस एच इक्वल टू दिस प्लस 28,000. सो 29,000 आवर्स आंसर आएगा. ठीक है, ठीक होना भी चाहिए, राइट. सो लास्ट क्वेश्चन, फाइनली वी डिड इट. Okay, which of the following variance would you find within the absorption costing system and which in the marginal costing system? So absorption costing system में contribution नहीं आता. contribution कहाँ आता है, marginal costing system में. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में आता है. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में आता है. सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, प्रॉफिट किस में आता है, एब्जॉर्प्शन में आता है. फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस भी आता है, एब्जॉर्प्शन में आता है. मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड के केस में ओनली एक ही वेरिएंस आता है, विच इज़ द एक्सपेंडिचर. सो ये चीज़ याद रखना है. ओके, सो होप यू गाइज इंजॉय दिस वीडियो. अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. इट विल रियली मोटिवेट मी अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बिकॉज the people who have not subscribed to my channel is around 78%, so which is not a good for me, right? So इतना मेहनत करती तो कुछ तो बनता है ना आपके साइड से. so I hope आपको पसंद आए. अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन टेक्स्ट मी इन द टेलीग्राम और इंस्टाग्राम. पूरा का डिस्क्रिप्शन आपको, आई मीन चैनल का आईडी वगैरह जो भी है, आपको अकाउंट वगैरह का डिटेल नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So thank you so much guys for watching my video. In next video we will do the reconciliation of budgeted and actual profit. So stay tuned with me for the next video. Thank you so much.